halides, reaction of alkyl halides with metals. हमारी अगली कैटेगरी है reaction of alkyl halides with metals. When we see reaction of alkyl halide with metals, first reaction is reaction with magnesium. हाँ जी बेटा, बोलो कुमार भी सेंटर बताइए. हाँ मेरी रिकॉर्डिंग है, ऑन हो रही है. In presence of diether, that is reaction with magnesium, alkyl halides plus magnesium, triether is there, and we get formation of RMgX. This is called Grignard reagent, or Grignard reagent is named as alkyl magnesium halide. This is called alkyl magnesium halide. The question arises, why ether and why dry ether? Why not only ether, and why it should be dry ether? Why ether reason is, when we say magnesium, halogen and R, so this is going to be a covalent compound. Grignard reagent is a covalent organometallic. It is covalent organometallic. Now in this case, magnesium is showing incomplete octet. Magnesium is having incomplete octet. So magnesium is showing its incomplete octet. That means octet is not complete for magnesium. When we say octet is not complete, ether is ROR and it is having two lone pairs. Here we have RMgX, that is Grignard reagent, and again another ether ROR. Now this ether is going to form a coordinate bond with magnesium. So now we can say magnesium is having incomplete octet and two ROR molecules can coordinate with magnesium to complete its octet. So magnesium is now having complete octet due to coordination by 2 moles of ether. Right? It means, what is the purpose of ether? It is to stabilize magnesium by coordinating with magnesium. Now question arises, why it should be dry then? Ether is sufficient. Why then dry ether? Dry ether because Grignard reagent react with water to give alkanes. So now Grignard reagent can react with water to give alkane. Reaction is RMgX. It combined with HOH, that is water. We get RH plus MgXOH. So we get formation of alkane. It means if Grignard reagent is present in presence of water, water will give us alkane formation. So Grignard reagent will be no more. So now first question from this topic can be, what is Grignard reagent, how it can be formed, and why dry ether is required for its preparation. So why ether is required? Reason is coordination. And why dry ether is required? Reason is water will react with Grignard to give us alkane.
हाँ जी, नोट कर लिया सबने? हाँ जी बेटा। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX में मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी चाहिए, राइट? लेकिन मैग्नीशियम के सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो उसकी ऑक्टेट क्या हो गई? इनकम्प्लीट, राइट? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए वो अनस्टेबल रहेगा। देयरफॉर 2 ईथर के मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। जब वो मैग्नीशियम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो मैग्नीशियम की ऑक्टेट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी ना, 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे उसके पास। तो ऑक्टेट ऑफ मैग्नीशियम विल बी कंप्लीट, यानी अब ग्रिग्नार्ड थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, वरना तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले बनते नहीं है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसीलिए बन पा रहा है क्योंकि वहां पे ईथर प्रेजेंट है और ईथर उसको कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स दे पाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी बेटा। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? बेटा ये R और H, RH बन जाएगा और बाकी बचा है MgX-OH। ठीक है, अब कंप्लीट करो जरा ये रिएक्शंस। एक सॉल्ट है जैसे MgClBr हो, मैग्नीशियम को एक साइड पे X मिला हुआ है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन, और एक साइड पे OH। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, इफ इट इज मिथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास बनेगा CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो और आप इसमें वाटर ऐड कर दो तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बेटा हमेशा क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CH4। तो वी गेट CH4 प्लस MgBrOH, यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। Clear? Now you can complete these reactions. If it is cyclohexyl chloride plus magnesium in presence of again dry ether, complete the reaction. Same way, if it is benzyl chloride plus magnesium, complete the reaction with water also and identify the alkane formed. करो जी, तीनों reactions complete करो।
Done? This is cyclohexyl magnesium chloride. ये बनाया और फिर जब वाटर ऐड करेंगे तो यू विल गेट साइक्लोहेक्सेन प्लस MgClOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड. In the next case, we are having benzene. First, we get formation of CH2MgCl. फिर आपके पास बन जाएगा toluene. We get formation of toluene plus MgClOH. Next में tertiary butyl magnesium bromide. And this tertiary butyl magnesium bromide is going to give us tertiary 2-methyl propane, that is a tertiary carbon, plus MgBrOH. Is it clear? ये सारा टॉपिक, सारी रिएक्शंस समझ आ गई. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज इम्पोर्टेंट रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इस रिएजेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन्स का इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. इस रिएक्शन से आप एल्केन्स बना सकते हो. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड इन various reactions for getting a variety of products. इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं. And important is alkane formation. Important is alkane formation. जब हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे तो हम ग्रिग्नार्ड की सारी रिएक्शंस को एक साथ इकट्ठा लिखेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि ग्रिग्नार्ड की हर चैप्टर में कोई ना कोई रिएक्शन आएगी. जैसे अल्कोहल में लिखेंगे तब, या फिर आप एल्काइल हैलाइड कर रहे हो, या फिर एल्कीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स, कोई भी टॉपिक हम करेंगे तो हर बार एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जरूर आएगा वहां पर. अगर हम कहते हैं एल्केन फॉर्मेशन, तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने इसे कहा कि हर चैप्टर में आएगा. तो अब आप देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एल्केन बनाना है तो एल्काइन्स कैन बी यूज्ड. जब आप एल्काइन यूज करोगे तो आपको पता है एल्काइन क्या होती है, एसिडिक. तो ये H जो है R के साथ चला जाएगा और MgX C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ. तो आपको मिलेगा RH प्लस MgX C ट्रिपल बॉन्ड CH. ये बन जाएगा. अगर हम अल्कोहल लिखें ROH, अगेन H पॉजिटिव हो नेगेटिव, तो ये R डैश कर देते हैं. ये R ग्रिग्नार्ड वाला और ये H, ये बन जाएगा RH प्लस ROMgX, यानी एक साइड पे OR लग गया और MgX तो है ही है. सेम वे आपने अब क्या करना है, हर एक जो भी मैं लिखूंगी उसमें से एक H उठाना है. अभी मैंने कहा था वाटर, तो आप H पॉजिटिव ले रहे थे. अगर हम फिनोल डाल दें, फिनोल इज बेंजीन विद OH, अगेन H पॉजिटिव हो नेगेटिव. वी कैन ऐड CH3COOH, H positive, COO negative. We can add RNH2. अगर NH2 डालेंगे तो फिर H positive, N negative amines. We can have ammonia, NH2 and H positive, N negative.
तो इट मीन्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपाउंड्स, एमीन्स, प्राइमरी एमीन्स, अमोनिया, एसिड्स, फिनोल, वाटर, अल्कोहल, एल्काइंस, जिनमें थोड़ा सा भी एसिडिक कैरेक्टर होता है, वो सबके सब विग्नाट से हमें क्या देंगे? एल्केन. ऑल दीज आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ RH. यानी हर हाल में एक ही एल्केन बनेगा, चाहे हम कुछ भी डालते रहें, और सेकेंड प्रोडक्ट जरूर डिफर कर जाएगा. तो आप कंप्लीट करो कि वो सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा. कंप्लीट दिस टेबल, इसे कंप्लीट करो. आयनिक कंपाउंड आप चाहो तो MG पहले लिख लो. हाँ जी बेटा बोलो. MgX जो है इकट्ठा क्यों जा रहा है? मैग्नीशियम बेटा अकेला रह नहीं सकता ना, तो मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड्स चाहिए ही चाहिए आयनिक. तो हैलोजन तो मैग्नीशियम है मेटल, हैलोजन है नॉन मेटल्स, तो मेटल कोशिश करेगा कि वो नॉन मेटेलिक साइड से जुड़ा रहे. कार्बन चेन में मेटल का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, वो जबरदस्ती थोड़ी देर के लिए R के साथ जुड़ जरूर गया है. जैसे ही मौका मिलता है तो वो O के साथ, N के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ना चाहेगा. इसलिए हमेशा क्या होगा? Mg के साथ X तो रहेगा ही रहेगा और एक नेगेटिव स्पीसीज और जुड़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि Mg और X का बॉन्ड जो होगा वो तो आयनिक है ना, वो तो टूटने की जरूरत ही नहीं. आप कोवेलेंट रिएक्शंस कर रहे हो तो बॉन्ड टूटेगा अल्काइल यानी कार्बन का मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग नहीं होता, अनस्टेबल बॉन्ड है वो. हाँ, R के ऊपर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव. R पे नेगेटिव कोई ज्यादा स्टेबल होता नहीं है, इसलिए R वहां से हटना ही चाहेगा. यानी मैग्नीशियम वैसे भी देखो ना, कार्बन कभी मैग्नीशियम से कार्बन कब बॉन्डिंग करता है? कभी भी नहीं. मैग्नीशियम के साथ कार्बन की बॉन्डिंग कोई ज्यादा स्टेबल थी ही नहीं, इसलिए जैसे ही उसको मौका मिला वो टूट के दोबारा से क्या बना देगा? RH प्लस MgX या और उसके साथ जो भी बचेगा वो. लेट्स टेक योर आंसर्स. यहाँ पे क्या बनेगा? MgXOH, यहाँ बन जाएगा MgX और साथ में लग जाएगा फिनोक्साइड. Here it will be, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इसे, बेंजीन विद OMgX, ऐसे भी बन सकता है. We are having CH3COO MgX. We can have RNH MgX. Another is MgXNH2. तो आपके पास एल्केन के साथ साथ एक और कंपाउंड बन रहा था जो मैंने आपको कहा था कंप्लीट करो. बताओ ये समझ आ गया कि कैसे बनाया हमने?
तो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हम कर चुके हैं, एल्केन्स जब मैंने कराया था तो ये इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वहां पर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन्स। सेकेंड इज reaction of alkyl halide with sodium। हमारी अगली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ alkyl halide